Hello and welcome everyone. Today we are going to do a brief and comprehensive study of the play Hamlet by William Shakespeare, which is also known by the name The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. So we know Hamlet was the Prince of Denmark. The play was written between 1599 and 1601, but this is debatable and was published in three versions. And first it was published in 1603 in a quarto, then it was published in 1604 again in a quarto, and in both of the versions there was no division into acts. It was a simple beginning and through middle to an end. And third and last, it was published in 1623 in the first folio, a folio which was collected by John Hemmings and Henry Condell and consisted of 36 plays of Shakespeare. Both of them were Shakespeare's fellow actors. Now, Hamlet is the longest play of Shakespearean canon. This is an important point to remember. And it is also important from the point of view that Hamlet, the character of Hamlet, delivers 7 soliloquies in this. Next, the play is set in Denmark, and we know that Hamlet is the Prince of Denmark. And at the time of writing, Denmark was following the religion of Protestantism. It is important because this has been asked sometimes. Okay. To brush up the basics again, Hamlet is a tragedy, and it is the first tragedy in the series HOKM, the important tragedies of Shakespeare. You need to remember, you can use this acronym: Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. So it is a tragedy which is the longest play in Shakespearean canon, in which the character of Hamlet delivers the 7 soliloquies. The play is set in Denmark, and Denmark was following the religion of Protestantism at that time. Now, moving on to sources. The very first and the most important source which has been pinpointed is Saxo Grammaticus's Life of Hamlet, which is a 13th century Latin work, and it resembles the plot of Hamlet. And second, Hamlet, like legends, that is, hero as a fool, were widely found in the surrounding places and in the surrounding literature too. And third, it is also important to remember that the play Hamlet shares many of its structural elements with Thomas Kyd's The Spanish Tragedy, or which is also known as Hieronymo is Mad Again. It is not a source of Hamlet, but it is a major influence on all the Elizabethan tragedies and also on Hamlet, because in both the plays there is a play within a play, which is, and the actors and the characters feign madness to identify the criminals. Okay. Now, moving on, we have the characters for Hamlet. Now, all the characters we'll just remember from the point of view of Hamlet's character. Hamlet, who is the Prince of Denmark, he is the son of the late King Hamlet and Gertrude, who is Hamlet's mother. Now, Claudius is Hamlet's uncle, and after the death of King Hamlet, Gertrude marries Claudius. Now, and the next character is Horatio, who is Hamlet's best friend and also goes to the same university as Hamlet. Then there is Polonius, who is an officer under the King of Denmark, and he is advisor to the king, and he is the father of Laertes and Ophelia. Polonius is the father of Laertes and Ophelia. Now, Ophelia is the love interest of Hamlet, but she is denied to accept Hamlet's love by
her father and her brother because of the difference in class and ranks. Then there is the character of Fortinbras. Nowhere specified that they are cousins. Who is the Prince of Norway? His father was killed by King Hamlet in a duel. We need to remember this. Then there are Rosencrantz and Guildenstern, who are friends of Hamlet from the university. Now, there are a few other characters which we need to remember. That is Rinaldo. He is important because he was sent by Polonius to France to spy on Learch, who is his son. Okay. This question has been asked in exam, so you need to remember who Rinaldo is. Then there is the character of Voltimand and Cornelius. They are also important because they are sent on a diplomatic visit to Norway by King Claudius. Now, then there are players who act in the play within the play. Hamlet asks the players to tell the story of King Priam and Queen Hecuba of Troy. This is important. The players perform the play within the play, which is a mousetrap to capture the criminals and is set up by Hamlet. And the play that the players perform is Murder of Gonzago. It is an important detail to remember because this has been asked in paper. We missed these characters. Marsilius and Bernardo, they are the sentries of the castle who in the opening scene saw the ghost for the first time. Now here is a map of the surrounding area in order to gain a little understanding of the plot and how is it working. Now from Norway, we know Fortinbras hails from Norway and he is coming to invade Poland and he needs to pass through Denmark. Okay, he needs to go to Poland, but he needs to pass through Denmark first. Then this is Denmark, where Elsinore, the castle of Hamlet, or where Hamlet resides. And this is Germany, where there is Wittenberg University, where Hamlet studied. And we know that Learch was sent to France for study. Now, then there is the character of Ghost, who is the ghost of the late King Hamlet. Now, the ghost tells Hamlet that he was killed by his uncle Claudius, and so he has to wander purgatory, and he asks Hamlet for revenge. Now, Ghost appears at two locations throughout the play. First is the ramparts of the castle, and second is in Gertrude's bedchamber. Now, moving on. This is also an important point to remember that till the end, 8 characters in the play die. Ghost was already, King Claudius was already dead, and during the course of play, Polonius, his daughter Ophelia, his son Learchus, they all die. Then there is Hamlet, his mother Gertrude, his uncle Claudius, they also die, and Rosencrantz and Guildenstern also die, making a total of 8. This is also an important point to remember. Now, having finished the basics of the play, now moving on to what the critics have said on Hamlet. Hamlet being an important play will definitely have questions in the exam. So, we have to read it from every angle. Okay, from a psychological point of view, we have Sigmund Freud, who in his interpretation of dreams discusses Oedipus Rex, Sophocles and Hamlet to give his concept of Oedipus complex. So it is important. Second work from psychological perspective is Ernest Jones' Hamlet and Oedipus, which was published in 1949, and he influenced the sexual interpretation of Hamlet's confrontation of his mother in her bedchambers. Then there is Jacques Lacan's Desire and the interpretation of desire in Hamlet. Lacan, working with the structure
of psyche and how language impacts the structure of psyche postulates that linguistic structures of Hamlet sheds light on human desires. That is, human psyche is determined by the structures of language. Then there are feminist critics who have defended the female characters, such as Caroline Hilbrum's The Character of Hamlet's Mother is an important text which defends Gertrude and assesses that, as according to the play, she never knew about the killing, and even the ghost of the late King Hamlet tries to save her. Now, second, Ophelia has also been defended by the feminist critic Elaine Showalter in her work Ophelia, Gender and Madness. Moving on, we have Hamlet and His Problems by T.S. Eliot, which was published in 1919. And in this essay, Eliot does a critical reading of the play, and rather than focusing on the character of Hamlet alone, he focuses on the play itself, and he accuses the earlier critics of just focusing on the character of Hamlet. And he famously proclaimed that Hamlet is a play is an artistic failure. This line has been asked in exams, so it is an important point to remember. Now, it is also important to remember what Voltaire wrote about Hamlet. Voltaire wrote a negative review of the play, stating that it is vulgar, barbarous drama which would not be tolerated by the vilest populace of France and Italy. One would imagine the piece to be a work of drunken savage. Not a good review, but an important point to remember. Now, also an important point to remember is the derivative works. First and the foremost important is Tom Stoppard's play Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, which was published in 1966. It is an absurdist and existential tragic comedy. Rosencrantz and Guildenstern Are Dead is a line that features in the play Hamlet itself and has a very profound impact on the audiences. So it's important to remember. Second is W.S. Gilbert's short comic play Rosencrantz and Guildenstern, and then there is Lee Blessing's comical sequel Fortinbras. These are minors and not that important, but Tom Stoppard's play is very important and you should remember this. What are the famous scenes? Now, we are discussing all this in points and bullets because it is easier to remember this way. And now, the famous scenes are the ghost scene, in which Hamlet encounters the ghost of his late father, which happens in first act, scene 5. And then there is the scene of To Be Not To Be, the famous soliloquy of Hamlet, in which he contemplates life and death. This happens in act 3, scene 1. Then there is the Mousetrap play, the play within play scene, which happens in act 3. Then there is Hamlet, when after the play, Hamlet comes to know or gets his suspicions cleared that yes, his uncle has killed his father. He goes to visit his mother and confronts her. This is also a very important scene. And then there is the scene of gravediggers, where gravediggers are digging a grave for Ophelia, and Hamlet and Horatio are passing by. And when they see a skull which is unearthed by the gravediggers to make space for the new grave, Hamlet again contemplates about life and death, and he is told that this skull belonged to Yorick, who was a court jester under King Hamlet, and Hamlet during his childhood knew this Yorick. Now, moving on to the plot of the play. Although you can skip the plot, but it's a very concise one, so you can go through it. होता क्या है? On a dark winter night, a ghost walks the ramparts of Elsinore Castle in Denmark. ये वही castle है जहाँ पे Hamlet और उसकी family रहती है. Ghost को सबसे पहले वॉचमैन है जो वहाँ पे जो सेंट्रीज हैं वो देखते हैं, एंड वो कौन है? मार्सिलस और बर्नार्डो, सॉरी. एंड फिर वो
हेमलेट के दोस्त होरेशियो को बुलाते हैं और उसको भी बताते हैं कि ये घोस्ट है जो द लेट किंग हेमलेट है उनकी तरह दिखता है। अब उस घोस्ट के अकॉर्डिंग क्लॉडियस, जो कि उनका भाई है, उसने किंग को मार के उसका थ्रोन ले लिया है एंड उसकी जो विडो हैं क्वीन गर्ट्रूड, उससे शादी भी कर ली है। अब होरेशियो और वॉचमैन जो हैं वो क्या करते हैं, हेमलेट के पास जाते हैं एंड उसको घोस्ट के बारे में बताते हैं। हेमलेट कौन है? द लेट किंग और क्वीन गर्ट्रूड का बेटा। अब घोस्ट हेमलेट से बात करता है और उसको बताता है कि वो उसके पापा की स्पिरिट है एंड ही वॉज मर्डर्ड, उनको मारा गया था बाय क्लॉडियस, जो कि अभी नए राजा हैं। एंड ही ऑर्डर्स हेमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन who usurped his throne and married his wife। उसके बाद घोस्ट जो है जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो एक मुर्गे की बांग सुन के गायब हो जाता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि किंग हेमलेट को कैसे मारा गया था। जो क्लॉडियस है उन्होंने किंग हेमलेट को मारा था जब वो सो रहे थे उनके कान में जहर डाल के, और वो कौन सा जहर था? हैबेनन। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब इसके बाद स्टोरी में क्या होता है कि प्रिंस हेमलेट पूरी तरह अपने आप को डिवोट कर देते हैं टू अवेंज हिज फादर्स डेथ। लेकिन उनका नेचर जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखा है वो बहुत कंटेम्पलेटिव और थॉटफुल है, तो वो हर छोटी चीज़ को बार बार सोच के उसकी वजह से उनके रिवेंज में बहुत डिले आ रहा होता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंटेम्पलेट करते रहते हैं एंड एक मेलैंकोलिक स्टेज दिखाई गई है हेमलेट की, और यहाँ पे इवन अपैरेंट मैडनेस भी दिखाई गई है, जो कि हेमलेट फीन कर रहे होते हैं, सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहे होते हैं। अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड को चिंता हो जाती है, उनको लगता है कि प्रिंस को कुछ तो पता है, या तो किंग की डेथ के बारे में, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हेमलेट के दोस्त हैं यूनिवर्सिटी से, रोजेनक्रैंस और गिल्डेनस्टन, इसको बुलाते हैं टू स्पाई ऑन हेमलेट। फिर इसके बाद पोलोनियस जो है, जो एडवाइज़र है टू द किंग, वो सजेस्ट करते हैं कि हेमलेट शायद उनकी जो बेटी है ओफिलिया, उसके प्यार में पागल हो गया है। अब क्लॉडियस जो किंग है वो इस पे अग्री भी करते हैं और अग्री करते हैं कि हम हेमलेट पे स्पाई करते हैं, ये देखने के लिए कि ऐसा सच में है या भी नहीं। बट हेमलेट की बातें सुन के उनको यकीन हो जाता है कि वो पागल हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से ओफिलिया से बात करता है। एंड जब ओफिलिया उनको मना कर देती है उसका लव रेसिप्रोकेट करने से, तो ही ऑर्डर्स हर टू एंटर अ ननरी एंड डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिजेस। इससे उन लोगों का सस्पिशन क्लियर हो जाता है कि हेमलेट शायद सच में ही पागल हो गया है। नेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स है जो कि एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स है जो कि एल्सिनोर आता है एंड हेमलेट को यहाँ पे एक आइडिया सूझता है। वो क्या करता है, अपने अंकल के गिल्ट को टेस्ट करने के लिए उन प्लेयर्स से एक प्ले परफॉर्म करता है जिसके सीन्स क्लोजली रिजेंबल करते हैं जैसा कि सच में क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने उसके पापा के साथ किया था। अब ये किया इसीलिए जाता है ताकि उनके रिएक्शन से पता चल जाए कि वो दोनों गिल्टी हैं या नहीं। अब जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो, और उसमें क्या होता है, ड्यूक ऑफ वियना है, उसको उनका नेफ्यू लुशेनियस मार के उनकी वाइफ बैप्टिस्टा से शादी कर लेता है, जो कि हेमलेट की इस स्टोरी लाइन से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। अब जब ये प्ले परफॉर्म होता है और क्लॉडियस स्लीप्स एंड लीव्स द रूम। अब ये प्ले देख के क्लॉडियस को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और वो प्ले देखना छोड़ के चला जाता है वहाँ से। अब हेमलेट और होरेशियो से इससे पता चल जाता है कि हाँ, जो घोस्ट कह रहा था वो सही कह रहा था और क्लॉडियस ने ही उनके पापा को मारा है, हेमलेट के पापा को मारा है। अब हेमलेट गुस्से में आकर क्लॉडियस को मारने के लिए जा ही रहा होता है, बट देखता है कि क्लॉडियस प्रे कर रहा है एंड अपनी प्रेयर में क्लॉडियस इसी चीज़ के लिए बोल रहा होता है कि मैंने हाँ उसको मारा है और शायद इसके लिए मुझे माफ़ी मिल जाए। अब इस मोमेंट पे हेमलेट उसको आराम से मार सकता था, बट वो यहाँ पे भी थोड़ा डिले कर देता है, ये सोच के कि अगर वो ड्यूरिंग प्रेयर क्लॉडियस को मार देगा तो क्लॉडियस शायद
हेवन में चला जाए, जबकि उसके पापा का घोस्ट अभी भी परगेटरी, जो कि हेल के साथ कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे है। अब उसके बाद हेमलेट सोचता है कि ऐसा मारना एक इनएडिक्वेट रिवेंज होगा, तो इसीलिए ही डिसाइड्स टू वेट। और इन सब के होने की वजह से क्लॉडियस सब काफ़ी डर जाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, और वो प्लान बनाते हैं कि हेमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। अब वो प्लान कैसे काम करता है वो आगे देखेंगे। हेमलेट अपनी माँ के पास जाता है ये चीज़ को कन्फ्रंट करने के लिए कि उनका क्या रोल था उनके पापा को मारने में, बट उसको पता नहीं होता है कि उनके बेड चैम्बर्स में पोलोनियस जो है वो छुप के उन पर स्पाई कर रहा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है। अब जब उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो बिना देखे हेमलेट उस टेपेस्ट्री में जो पर्दे के पीछे जब पोलोनियस छुपा है पर्दे को स्टैब कर देता है। ही स्टैब्स थ्रू द फैब्रिक, जिसकी वजह से पोलोनियस मर जाते हैं वहीं पे। अब पोलोनियस को मारने के लिए मारने की वजह से हेमलेट को इमीडिएटली इंग्लैंड भेज दिया जाता है। किनके साथ भेजा जाता है? रोजेनक्रैंस और गिल्डेनस्टन, जो उसके दोस्त थे फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्लॉडियस का एक प्लान है, वो सिर्फ हेमलेट को बैनिश नहीं कर रहे होते हैं यहाँ से, बट उन्होंने रोजेनक्रैंस और गिल्डेनस्टन को एक सील्ड ऑर्डर दिया होता है फॉर किंग ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने ये डिमांड की होती है कि हेमलेट को मार दिया जाए, जो कि हेमलेट को पता नहीं होता है। अब पोलोनियस जो हैं उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी जो ओफिलिया है वो पागल हो जाती हैं दुख के कारण, और उस पागलपन में वो फूल इकट्ठे करती रहती हैं, मालाएं बनाती रहती हैं और गाने गाती रहती हैं, और इसी पागलपन में वो एक नदी में डूब के मर भी जाती हैं। अब जब पोलोनियस का जो बेटा है लिएटस, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फ्रांस में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको अपनी बहन और पापा की डेथ का पता चलता है, तो वो बहुत ही गुस्से में डेनमार्क वापस आते हैं। अब उनके इस गुस्से का इस्तेमाल भी जो किंग क्लॉडियस करते हैं, कैसे वो उनको कन्विंस कर देते हैं कि हेमलेट की वजह से उनके पापा और उनकी बहन की डेथ हुई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्लॉडियस फिर से प्लान करेंगे हेमलेट को हार्म करने का। अब यहाँ पे बीच में एक सीन आता है जहाँ पे होरेशियो और किंग क्लॉडियस को पता चलता है कि हेमलेट जिंदा है, एंड उसने लेटर्स भेजे हैं जिससे पता चल रहा है कि वो वापस आ रहे हैं टू डेनमार्क। अब वो बचते कैसे हैं? उनकी जो शिप थी जिसमें वो जा रहे थे इंग्लैंड, पायरेट्स उस शिप पे अटैक करते हैं, सबको मार देते हैं, बट हेमलेट पायरेट्स को कहते हैं कि वो एक प्रिंस हैं, तो अगर वो उनको वापस से अपने घर डेनमार्क पहुंचा देंगे तो वो उनको जो भी मांगेंगे वो दे देंगे। अब इस मौके पे फिर क्लॉडियस एक प्लान बनाते हैं। अब इसमें वो क्या प्लान करते हैं कि हम जो लिएटस हैं पोलोनियस के बेटे, उनकी डिज़ायर ऑफ रिवेंज को यूज़ करके हेमलेट को मार सकते हैं। अब वो एक मैच अरेंज करवाते हैं लिएटस और हेमलेट के बीच, मैच ऑफ फेंसिंग का, जिसमें वो लिएटस की जो ब्लेड है वो शार्प रखेंगे रादर देन गेम वाली ब्लेड, एंड उस ब्लेड पे वो पॉइजन भी लगा देंगे। तो अगर हेमलेट को उससे लगता है तो हेमलेट विल डेफिनेटली डाई। और इसका एक वो बैकअप प्लान भी बनाते हैं कि अगर हेमलेट जीत जाता है किसी तरह से तो वो एक गॉबलेट में उसको वाइन ऑफर करेंगे जिसमें पॉइजन होगा। गॉबलेट एक बड़ा सा कप आप लगा सकते हैं। अब ये क्लॉडियस का प्लान था हेमलेट को मारने के लिए। अब जब हेमलेट आ रहा होता है वापस, एल्सिनोर के पास ही पहुंचा होता है, तो ओफिलिया का फ्यूनरल चल रहा होता है, एंड उनको भी पता नहीं होता ये किसका फ्यूनरल है, बट जैसे ही उसको पता लगता है कि ये ओफिलिया का फ्यूनरल है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उस दुख में वो लिएटस पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है, लिएटस और हेमलेट जो हैं वो ओफिलिया की ग्रेव जो अभी खुदी हुई है उसी के अंदर जाके लड़ाई करने लगते हैं। अब बाकी लोग आके उनको उसमें से निकालते हैं, एंड हेमलेट क्लेम करता है कि ही एक्चुअली लव्ड ओफिलिया। अब कासल में होरेशियो और हेमलेट बात कर रहे होते हैं, एंड हेमलेट फिर से लाइफ एंड डेथ को कंटेम्पलेट कर रहा होता है, एंड हेमलेट कहता है कि सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट वन मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू डाई। अब इसी बीच एक कोर्टियर आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आता है एंड किंग क्लॉडियस के ऑर्डर्स हेमलेट को देता है, जिसके अकॉर्डिंग हेमलेट और लिएटस में एक फेंसिंग मैच कराया जाएगा। नेक्स्ट, अब जब ये स्वॉर्ड फाइटिंग वाली मैच बिगिन होती है तो हेमलेट पहला राउंड तो जीत जाता है, बट जो किंग उसको ड्रिंक ऑफर करते हैं वो पीने से मना कर देता है। नाउ सेकंड, उसी टाइम पे क्या होता है, गर्ट्रूड जो हेमलेट की मम्मा हैं
उनको पता नहीं होता है कि उस ड्रिंक में पॉइजन है और वो वहाँ से पी लेती हैं एंड अचानक से मर जाती हैं। अब लिएटस इस बीच सक्सीड कर जाता है हेमलेट को वूंड करने में। अब हेमलेट को जब लग जाती है, वो अचानक से पॉइजन से मरता नहीं है, अभी हल्का सा वूंड ही हुआ होता है। पहले उसमें और लिएटस में लड़ाई होती है एंड वो लिएटस को उसी की पॉइजनस तलवार से मार देता है। अब मरने से पहले लिएटस पूरा रिवील करता है हेमलेट को कि कैसे क्लॉडियस इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इवन गर्ट्रूड की डेथ के लिए। एंड फिर लिएटस ब्लेड के पॉइजन से मर जाता है। अब हेमलेट को जब ये सब पता चलता है तो वो क्लॉडियस को जाके स्टैब कर देता है उसी पॉइजन स्वॉर्ड से, और जो बचा हुआ पॉइजनस वो वाइन होती है वो उसको ज़बरदस्ती पिलवा देता है। अब क्लॉडियस भी मर जाता है एंड देन हेमलेट भी मर जाता है थोड़ी देर में, और उसका रिवेंज भी पूरा हो जाता है। अब उसी मोमेंट पे जो फोर्टिनब्रास हैं, जो कि नॉर्वे के प्रिंस हैं, वो वहाँ आते हैं अपनी आर्मी के साथ, जो कि डेनमार्क से गुजर रहे होते हैं आफ्टर अटैकिंग पोलैंड। अब उनके साथ इंग्लिश एम्बेसडर्स भी आते हैं जो एक रिपोर्ट लाते हैं साथ में, और रिपोर्ट में बोला जाता है रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि हेमलेट ने अपने इंग्लैंड की जर्नी पे रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न से वो लेटर लेके उसको चेंज कर दिया होता है, जिसमें रादर देन ये लिखना कि हेमलेट को मारा जाए, वो ये लिख देते हैं कि रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न को हैंग कर दिया जाए। अब फोर्टिनब्रास ये देख के बहुत स्टन हो जाते हैं कि सारी की सारी रॉयल फैमिली मरी पड़ी हुई है। फिर वो किंगडम की पावर अपने हाथ में ले लेते हैं एंड होरेशियो, जो कि हेमलेट के दोस्त हैं, वो फिर बताते हैं फोर्टिनब्रास को कैसे कि हेमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट थी कि उनकी जो ये ट्रेजिक स्टोरी है वो सबको बताई जाए। अब फोर्टिनब्रास फिर लास्ट में ऑर्डर करते हैं कि हेमलेट बी कैरिड अवे इन अ मैनर बिफिटिंग अ फॉलन सोल्जर, और बहुत रिस्पेक्टफुली उनको वहाँ से कैरी किया जाता है। नाउ दिस इज़ द कंसाइज प्लॉट। आप इसके थ्रू पूरा जा सकते हैं एंड आई थिंक सारा कुछ कवर हो जाएगा यहाँ से। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो होते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस। हम देखेंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो हेमलेट में हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेमलेट के फर्स्ट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वो क्लॉडियस को एक रिप्लाई में बोल रहे होते हैं, जब क्लॉडियस उनको कहते हैं माई कज़न हेमलेट एंड माई सन। हेमलेट इस पे कहते हैं अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कोटेशन है एक फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वुमन। ये हेमलेट एक्ट 1 सीन 2 में अपनी एक सोलिलिकी में बोलते हैं, जिसमें वो जब घोस्ट उनको बताता है कि कैसे उनको मारा गया, तो वो अपनी मम्मा का रोल कंटेम्पलेट करते हुए ये चीज़ बोलते हैं बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है पोलिनियस द्वारा, जो वो अपने बेटे लिएटस को फ्रांस जाने से पहले बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है पूरी। नीदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्टन लूजेस बोथ itself एंड फ्रेंड, एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, and above all to thine own self be true. Moving on, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है। समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये मार्सिलियस जो कि सेंट्री हैं, वो एक्ट 1 सीन 4 में बोलते हैं, एंड इसको रिलेट किया जाता है द मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि एक लेजिटिमेट राजा ना होने से एक स्टेट पे क्या असर पड़ता है। देन ब्रिविटी इज़ द सोल ऑफ इट, ये भी पोलिनियस बोलते हैं। नेक्स्ट कोटेशन इज़ व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनाइट इन फैकल्टी। ये हेमलेट अपनी किसी एक कंटेम्पलेशन में ये बात करते हैं। एंड देन गेट दी टू ननरी, वाई वुड दो बी ब्रीडर ऑफ सिनर्स, आई हैव हर्ड ऑफ योर पेंटिंग्स वेल इनफ, गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। ये हेमलेट ओफेलिया को बोल रहे होते हैं, जब ओफेलिया उनके लव को रिस्पॉन्ड करने से मना कर देती हैं, तो वो ये थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट कोट भी है, वो मेकअप के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं एंड वीमेन के अगेंस्ट भी इन जनरल बोल रहे हैं। द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, ये क्वीन गर्ट्रूड कहती हैं जब वो प्ले परफॉर्म हो रहा है उसको देख रही होती हैं। माई वर्ड्स फ्लाई अप एंड थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। ये बोला जाता है किंग क्लॉडियस से, जब वो एक्ट को देखते हुए अपना गिल्ट रिकग्नाइज करके वहाँ से उठ के आ जाते हैं और अंदर आके प्रे करने लगते हैं। Then next, I must be cruel only to be kind,
दस बैड बिगिन्स एंड वर्स रिमेन्स बिहाइंड, ये हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। एंड नेक्स्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि हैमलेट की एक सॉलिडिकी में से है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे हैमलेट लाइफ और डेथ को लेके कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं एंड बस यही कह रहे होते हैं कि जीना है या मरना है। देन देयर इज अलास पुअर योरिक, आई न्यू हिम, होरेशियो अ फेलो ऑफ इन्फिनाइट चेस्ट ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट फैंसी। ये हैमलेट तब बोलते हैं जब वो ग्रेव डिगर्स वाला सीन चल रहा होता है एंड ग्रेव डिगर्स ओफेलिया के लिए ग्रेव बनाने के लिए पुरानी ग्रेव को खाली कर रहे होते हैं। अब उस ग्रेव में से जो स्कल निकलता है वो हैमलेट को बताया जाता है कि यॉरिक का है, जो कि एक कोर्ट जेस्चर था किंग हैमलेट के टाइम। आई लव्ड ओफेलिया फॉर 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum, what will thou do for her। ये हैमलेट तब कहते हैं जब उनको पता चलता है कि ओफेलिया की ही ग्रेव डिग की जा रही है और ओफेलिया का फ्यूनरल है, तो वो लिएटस से लड़ते हुए ये चीज़ कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। एंड देन रेडीनेस इज़ ऑल, ये हैमलेट अपनी एक कंटेम्पलेशन में जब होरेशियो से बात कर रहे होते हैं लाइफ और डेथ पे, तो ये कहते हैं कि डेथ हमेशा कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है, तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। एंड ये है हैमलेट के लास्ट वर्ड्स, द रेस्ट इज़ साइलेंस। एंड विद दिस हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट हैमलेट एक शॉर्ट से उसमें हम देखेंगे वो क्या है। देखिए, पहला, हैमलेट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेजेडीज, जिसमें ये एक्रोनिम आपने याद रखना है, HOKM, होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो अगर कभी क्वेश्चन आए तो यू कैन ईजिली आंसर दैट। देन हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क and it is the longest play of Shakespeare. हैमलेट 7 soliloquies डिलीवर करते हैं। प्ले डेनमार्क में सेट है एंड डेनमार्क उस टाइम पे प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो कर रहा था। जो प्ले है ये एक लैटिन वर्क सेक्सो ग्रामेटिकस के लाइफ ऑफ एम्लेथ से इंस्पायर्ड है। एंड सेकेंड, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि टॉमस किड के द्वारा लिखी गई थी उससे इंस्पायर्ड हैं, जिसमें प्ले विद इन प्ले आता है और फीनिंग मैडनेस वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। एंड कैरेक्टर्स तो हमने पढ़े हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड जो भी आपके पास सजेशंस हैं प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। A video discussing MCQs on Hamlet will be uploaded shortly, so stay tuned for that. Thank you so much.